Now let me share my Ayush. Okay. Now let me share my screen with you. Karthik. शेयर हो रही है? स्क्रीन हाँ अब दिखेगी शायद। हाँ डिनाई कर दिया आपने। हाँ तो ये करेक्ट अदिति है तो उससे आगे से बताना पड़ेगा कि भाई अपना फोटो डाल के रखो। वैसे तुम लोग समझदार हो गए हो ना, सेकेंड ईयर में आ गए हो, लेकिन फिर भी ओके। सो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, लेट मी सी। हार्मोनिक फंक्शन हमने हार्मोनिक फंक्शन तक किया था, इज दैट राइट? हाँ ठीक है ना, ये यहाँ तक किया था। एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन के इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन। तो ये हार्मोनिक फंक्शन है व्हेन यू प्रूव दैट एनी फंक्शन is equal to 0, del square u over del x square plus del square u over del y square equal to 0. Now let us do one question. Prove that the functions the function u equal to x cube 3x y square or x cube Avinash, okay, u equal to x cube minus 3x square by plus 3x square minus 3y square plus 1, चल क्यों नहीं रहा ये? This, okay, this satisfies Laplace equation and also determine regular or analytic function f. Okay, u plus iv. क्यों नहीं हो रहा है बार बार? तुम्हें ठीक दिख रहा है ये? तुम्हें मेरे ये जो मैं लिख रही हूँ ठीक दिख रहा है ना? ओके ठीक है, अगर ठीक दिख रहा है तो मुझे लिखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक हो रहा है बीच में अक्षर, इसलिए। सो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है प्रूव दैट दिस फंक्शन u satisfies Laplace equation and also determine regular or analytic function f. So you know कि Laplace if it satisfies Laplace equation then it is a analytic function. So हमें u दिया हुआ है तो हम del u over del x del u over del y कैलकुलेट कर सकते हैं, then second derivative कैलकुलेट कर सकते हैं, right? And then we can prove that this function is harmonic. Okay, so let us find out this analytic function f which is u plus, which is in the form u plus iv. So u is given to u क्या है हमारा x क्यूब माइनस, मैं दोबारा पूरा नहीं लिख रही हूँ, okay? So ये आ गया
नाउ डेल यू ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा 3x square because it's a partial derivative. So del u over del x is 3x square minus 6x by plus 6x. Okay, और बाकी 0 हो जाएगा. Similarly you can calculate del square u. Now del square u over del x square you can calculate, and this is 6x minus 6 by सही लिखा है मैंने क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन सही नहीं लिखा, यहाँ पर x बाई स्क्वायर है ये. ओके, तो अदरवाइज वो शायद हार्मोनिक नहीं होगा. सो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3, यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो 3 बाई स्क्वायर. सो लेट मी करेक्ट इट. ओके, सो ये क्या आ गया विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम यहाँ पर. सो दिस इज 3 बाई स्क्वायर प्लस 6x. सो दिस इम्प्लाइज del square u over del x square, this is equal to 6x. okay, and फिर अगेन प्लस 6, ये तो 0 ही हो जाएगा because it's a partial derivative. Now calculate in a similar manner del u over del by. So del u over del by क्या हो जाएगा आपका, you are differentiating u partially with respect to by. So ये हो जाएगा minus 6x by और क्या है minus 6 by, right? And now you calculate del square u over del by square. Okay, and if you do that, then this is minus 6x minus 6. So you can see from these two equations clearly that del square u, or let us write down, because del square u over del x square plus del square u over del y square equal to 0. So this means this satisfies Laplace equation. Okay, now next part है इसका that you have to determine this regular or analytic function के fz. So u plus iv, तो हमें क्या पता करना है v. Okay, so we have to calculate b. So let us write down. Now let us use Cauchy-Riemann conditions, and Cauchy-Riemann conditions you know. Okay, so we know Cauchy-Riemann conditions. What are they? Cauchy-Riemann conditions, and they are del u over del x equal to del v over del by, और क्या थी del u over del by equal to minus del v over del x. okay, ये थी. So del u over del x तुमने अभी निकाला है. So let us write down del u over del x. So del u over del x ये हमने अभी कैलकुलेट किया था. So del u over del x हमारा क्या आ गया था 3x square minus 3 by square, okay, plus 6x. Now if you use Cauchy-Riemann conditions, then by Cauchy-Riemann conditions this becomes, this is equal to, Cauchy-Riemann condition से ये क्या आ जाएगा Cauchy-Riemann conditions del v over del y. So del v over del by ये यहाँ से आ गया, right, by using Cauchy-Riemann conditions. Okay, so let me give name to these equations now. Okay, and now I give 3. Okay, so similarly you have written del u over del by. So del u over del by क्या था आपका del u over del by क्या आया था हमारा
माइनस 6x/, तो माइनस में यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके, सो 6x/, प्लस 6, राइट, प्लस 6/, यही आया ना, हाँ ठीक है। सो डेल यू ओवर डेल बाई भी आ गया, माइनस मैंने यहाँ ले लिया, एंड बाई कॉशी रीमान कंडीशंस ये क्या आ जाएगा आपका, डेल वी डेल एक्स, राइट। सो कॉशी रीमान कंडीशंस यहाँ पर हम यूज करेंगे, एंड देन बाय यूजिंग कॉशी रीमान कंडीशंस दिस इज डेल वी ओवर डेल एक्स, ये आ गया हमारा, ओके। नाउ लेट मी गिव दिस इक्वेशन नंबर 4, ओके। सो नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 3 with respect to y. So if you integrate this equation with respect to y, तो ये क्या आ जाएगा, now integrating equation 3 with respect to y, okay. So if you do that, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका v, so this is v, और क्या आ जाएगा आपका v इक्वल टू, ये यहाँ से क्या आ जाएगा 3x² बाई माइनस 3/3, सो बाई क्यूब, राइट, प्लस 6x/, plus a constant, okay. So plus a constant, this is a constant with respect to x, okay. This C1x, this is a constant with respect to x, okay. Now integrate equation number 4. Now integrating equation 4 with respect to x. So if you do that, तो यहाँ से फोर्थ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर तो v आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड पर हमारा क्या आ जाएगा, यू आर डिफरेंशिएटिंग इट, ओ सॉरी इंटीग्रेटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x नाउ, तो 6x² बाई 2 के बाई, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x² बाई, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 6x/, so plus 6x/, plus a constant, this is a constant with respect to y, okay. So मैं इसको भी कुछ नाम दे देती हूँ, let us say 5 and 6, okay. Now these 5 and 6 they are satisfied if, यहाँ पे C2 कर दो, ये वो C1 है ना, okay. If you substitute C2 by equal to minus by 3, right, and C1x equal to 0. So if you choose these two constants, कहाँ गया, हाँ ये, so these two equations 5 and 6 they are satisfied if you choose C1x equal to 0 and C2 by equal to minus by cube, okay. So if you compare these two equations, तो ये दोनों equations कब simultaneously satisfied होंगी, जब C1x equal to 0 and C2 by equal to minus by cube. So by comparing equations 5 and 6, okay, C1x equal to let us say 0 and C2 by equal to minus by cube, and if you choose this, then your V becomes thus V equal to or Vx/y equal to, ये क्या आ जाएगा, V is a function of x and y both, so you can write Vx/y, और u भी function है x and y both, so you can also write ux/y. Now V equal to क्या आ गया, therefore 3x² by, यहाँ पर एक बाई और होगा, फिर यहाँ पर हम कुछ भूल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, हाँ बाई होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज तो गलत हो जाएंगे. सो दिस इज इक्वल टू 3x² बाई के प्लस 6x बाई माइनस बाई क्यूब, ये आ गया, ओके. सो आपका एनालिटिक फंक्शन इज देयरफॉर
and our analytic function, the corresponding analytic function fz, which is equal to uxy plus ivxy is, that you substitute now values, so you get this analytic function. You substitute value of u from your equation, ये जो भी कुछ थी इसको क्या बोल दो, इसको अच्छा 1 बोला हुआ है तो इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, ऐसे कर दो. इसको 1 बोला हुआ है ना, तो इसको 2 3, then this is 4, this is 5, 3 की जगह 4, okay, and this is 6 and this one is 7, okay. So equation number 1 and from equation number 8. So by using equation number 1 and equation number 8, write down value of u and v, okay. So this is how you do this, okay. Now let us do the next thing. Okay, now we know Cauchy-Riemann conditions. Now we can write it in polar form. Okay, so Cauchy-Riemann condition in polar form you can write by substituting x equal to Cauchy-Riemann conditions in polar form, polar coordinates. You must be remembering polar coordinates from your first year. याद है? Curvilinear coordinate system भूल गए? X equal to r cos theta, y equal to r sin theta, right? And you know, यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ हमें चाहिए नहीं कि x and y की वैल्यू पता होनी चाहिए, how they are related to these Cartesian coordinates. So you know very well, okay, from even from your 12th books, and therefore now z equal to x plus I by, okay, and x plus I by this is equal to therefore r cos theta plus I sin theta, and this you know from Euler's equation, ये क्या था हमारा r e to the power I theta, ये हमको अभी तक पता है. Okay, now let us substitute u plus iv equal to fz, okay, where z is r e to the power I theta, so r e to the power I theta, okay. Now let us differentiate this equation with respect to r. So now differentiate equation number 1 with respect to r. So if you differentiate it with respect to r partially, then you get del u. Partially इसलिए करते हैं क्योंकि ये x and y both they are functions of x and y both. So now del u over del r plus I del v over del r, तो ये क्या आ जाएगा आपका f prime r e to the power I theta, okay. So this is f prime denotes df by dr, okay, and then ये क्या आ जाएगा यहाँ से, you are differentiating it partially with respect to r, so only e to the power I theta, right. So ये आ गया equation number 2, okay. Now differentiate equation number 1 partially with respect to theta. Now differentiate equation number 1 partially, let us write down partially with respect to theta, okay. So if you differentiate it partially with respect to theta, then del u over del theta plus I del v over del theta, and यहाँ से क्या आ जाएगा f prime again, okay, and this is r e to the power
I theta, but now you are differentiating it partially with respect to theta. So therefore यहाँ पर और क्या आ जाएगा आपका r, okay, and e to the power I theta, और क्या आ जाएगा I, right? So let me call this equation number 3. Okay, now let me substitute value of this thing f prime r e to the power I theta. Okay, value of this means you have to substitute value of this thing, okay, from equation number 2 to equation number 3. So substituting value of f prime r e to the power I theta, e to the power I theta from equation number 2 to equation 3. Okay, so then you get this thing equal to, ये क्या आ गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर तो यही आ जाएगा. सो डेल यू ओवर डेल थीटा, del u over del theta plus I del v over del theta, एंड राइट हैंड साइड पर हमारा क्या आ जाएगा del u over del r. तो r एंड I तो हमारे एज इट इज रहेंगे, r एंड I हमारे एज इट इज रहेंगे, एंड हम इसकी वैल्यू रख देते हैं. सो del u over del r plus I del v over del r, okay, एंड I यहाँ पर एक बाहर है. Is that right? And now this thing equal to I r del u over del r, okay, and I square is -1, so minus del v over del r, okay. So now if you compare left hand side and right hand side here, comparing left hand side and right hand side of above equation, तो ये क्या आ जाएगा आपका del u over del theta. So compare these real and imaginary parts. So real and imaginary parts if you compare, then del u, हाँ यहाँ पर r रह गया. Good, thank you. Okay, so del u over del theta, okay, this is equal to minus r del v over del r, okay. And if you compare these imaginary parts, then del v over del theta, this is equal to r del u over del r, okay. So therefore these are the Cauchy-Riemann conditions in polar form. So therefore Cauchy-Riemann conditions in polar form are Cauchy-Riemann conditions in polar form क्या हो गई हैं आपकी, del u over del r equal to 1 by r del v over del theta, okay, and del u over del theta, this is equal to minus r del v over del theta, okay. So कहीं polar form का है, then also you can use these Cauchy-Riemann conditions, okay. Now let us come to the next thing, which is a very important theorem. This is known as Cauchy integral theorem, okay. So let us come to that Cauchy integral theorem. Okay. So what does it says? Okay, it's suppose that a function, fz is
is analytic. एनालिटिक्स है यहाँ मोस्टली, यहाँ पर जितना भी ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में यूज होता है तो डिफरेंशिएबिलिटी के सेंस में यूज होता है. ओके, सपोज दैट एफजेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन. और डोमेन जैसे हम सरफेस बोलते थे, रीजन बोलते थे, डोमेन उसके सेंस में यूज होता है. ओके, सो डोमेन डी, ओके, एंड दैट एफ प्राइम, एंड व्हाट इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन ये मैं आपको भी बताऊंगी. ओके, एंड दैट एफ प्राइम, ओके, इज कंटिन्यूस इन दैट डोमेन, continuous in D. Okay, then for every simple closed curve, then for every simple closed curve, okay, और सिंपल क्लोज्ड कर्व मत लिखो, यहाँ पर बोला जाता है कंटूर. ओके, कर्व को ही यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम कंटूर बोलते हैं. सो इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वर्ड से. ओके, कंटूर माने कर्व के, जो हम पहले बोलते थे कि ये कर्व है तो यहाँ बोलेंगे ये कंटूर है. ओके, सो कंटूर है. एंड डोमेन हमेशा रीजन के सेंस में, ये मेरी डोमेन है, ये किसी जैसे होता है ना, ये किसी का राज्य है तो ये मेरी डोमेन है, ये उस राजा का डोमेन है तो राज्य है, तो डोमेन की उसकी एरिया के सेंस में. ओके, सो simply closed contour C in D. Okay, then integral C fz dz equal to 0. Okay, where this symbol you know, ये जो ये सर्कल बनाकर एक मैंने एरो लगाया है, दिस सिंबल, ये आपको लास्ट ईयर बहुत सारा बार बार यूज होता था सरफेस इंटीग्रल में एंड लाइन इंटीग्रल में. ओके, सो दिस सिंबल मीन्स द इंटीग्रल इज अराउंड ए क्लोज्ड कर्व. Okay, and the curve is traversed in the counterclockwise direction because counterclockwise direction is supposed to be the positive direction, okay, in physics. So this symbol means you know. Okay, पर मैं फिर भी लिख देती हूँ, द symbol means that the integral is around a closed curve and the symbol also indicates that the path is traversed in the counterclockwise direction. In counterclockwise direction. Okay. Now let me once again read the statement of this Cauchy integral theorem. This Cauchy integral theorem says that suppose that a function, if you have a function fz which is analytic in a simply connected domain or D, and that f prime is continuous in that domain, then for every simple closed contour C in that domain, integral C fz dz equal to 0. Okay, and this symbol means this integral is around a closed curve, and also it indicates that the path is traversed in counterclockwise
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, सो व्हाट इज सिंपली कनेक्टेड? सिंपली कनेक्टेड का क्या मतलब है कि if you have a region in the complex plane, let us say, okay, then if all the closed path within this region can be shrunk to a point. इसका क्या मतलब हुआ कि if you have some region like you have this type of region, can you see me? Yes, ma'am. Okay, if you have, ये कोई भी रीजन है हमारा, यहाँ पर ये कोई भी रीजन है, इफ यू कैन जस्ट इसको ऐसे सिकोड़ते जाओ चारों तरफ से सर्कल को, तो क्या होगा, एक पॉइंट बन जाएगा ना, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा ना. ये चारों तरफ से अगर इसको ऐसे श्रिंक करते जाओ तो एक पॉइंट बन जाएगा ये, है ना. सो इफ a region in a complex plane is called simply connected if all the closed path within this region they can be shrunk to a point. ये एक कंडीशन है. दूसरी क्या हो सकती है कि जैसे अगर सपोज इस टाइप का कोई रीजन है ना, इस टाइप का कोई रीजन है और आप क्या करते हैं कि आप कैंची उठाते हैं, okay, और किसी एक बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं और दूसरी बाउंड्री पे वो खत्म होना चाहिए. सो इफ कैंची से अगर आप इस रीजन को काट देते हैं कहीं से भी, तो इसके 2 पीस होने चाहिए. ओके, इसके 2 पीस होने चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन. ये अपने आप क्यों स्टॉप हो गया? जस्ट ए मिनट. इंटरनेट चला गया क्या? नहीं. तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? Okay, so it also has the property that every scissor cut, okay, starting at an arbitrary point, let us say Z1, on the boundary and finishing at another boundary, okay, this means at another point Z2, okay, on the boundary, then it separates the region into 2 unconnected pieces. Okay, ये दूसरी कंडीशन है. तीसरी कंडीशन हमारी क्या है? A region in the complex plane is called simply connected if all the closed path within the region contains only points that belong to that region. So इसका मतलब क्या हुआ? So for example, okay, व्हाट इज, सबसे पहले ये समझना है मैंने, सिंपली कनेक्टेड रीजन. सिंपली कनेक्टेड रीजन, ओके. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सम रीजन, कोई भी रीजन है हमारा, ओके, तो इस रीजन में क्या है हमारा कि दिस इज सिंपली कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ इट कैन बी श्रंक टू ए पॉइंट. अगर इसको ऐसे श्रंक करते चले जाओ तो क्या होगा, दिस वुड बी ए पॉइंट. तो इस तरह का रीजन, दिस इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड. अब सिंपली कनेक्टेड ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है, बिकॉज यहाँ पर अब अगर कोई भी तुम पॉइंट ले लेते हो एक बाउंड्री पर, कहीं पर भी एक बाउंड्री पर Z1 ले लेते हो, इस पर Z2 ले लेते हो, यहाँ पर कहीं पर भी, ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक तुम एक सीजर कट लगा देते हो, कैंची से काट देते हो इसको, तो क्या होगा, कैंची से काटा तो ये 2 अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, अनकनेक्टेड पीसेस. ओके, एंड तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर सपोज इसके अंदर भी कोई और रीजन्स हैं, ओके, अगर इसके अंदर रीजन्स हैं इस तरह के क्लोज रीजन्स, ओके, इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ पे.
ओके। तीसरी क्या है, अगर इसके अंदर कोई भी सपोज ऐसे रीजन बनाए हैं आपने, कोई भी रीजन है आपके इसके, तो इसके इनके जो अंदर जितने भी रीजन है उनके सारे पॉइंट्स यहाँ पर इसी रीजन में बिलोंग करने चाहिए। ओके। और एक और चीज है, ये सिंपली कनेक्टेड कर्व कौन सा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेन आपने रखा यहाँ पर किसी लाइन पर, और अब आपको बिना उठाए निब के अगर आप पूरा ट्रेवल कर सकते हैं, तो मैं दूसरा ले लेती हूँ अभी कलर, यहाँ से आपको दिखेगा। सो अगर आपने पेन की निब यहाँ रखी, ओके, सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट पर रखी, मैंने रेड कलर लिया है, अब इसको मैं चलाती जा रही हूँ इस तरह से बिना उठाए पेन की निब को। ओके, सो इफ आई कैन ट्रेवल दिस होल पाथ, ओके, देन दिस इज ए सिंपली कनेक्टेड कर्व। ओके, पता चला? नहीं? बच्चा लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं? ओके, तुम बोलते नहीं हो तो मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ तुम लोग सो गए लगता है। मैं पहले बोलते थे बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा होता था तो अब तो कंप्यूटर को पढ़ा रहे होते हैं। इज दैट राइट? सोए तो नहीं हो ना? हाँ, नहीं, पक्का? अच्छा, फिर ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे हो? Yes, ma'am. ओके, देन इट्स फाइन। ओके, अच्छा, तो ये जो मैं बता रही हूँ ये समझ में आया है कि नहीं? सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या है? क्योंकि इसके आगे जो चीजें होंगी बार बार ये वर्ड यूज होंगे, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बट ये सिंपली कनेक्टेड रीजन, और रीजन सिंपली कनेक्टेड रीजन कौन सा है? अगर ये कोई रीजन दिया हुआ है आपको, ये जो मैंने बनाया है, जैसे एक मैंने कर्व बना दिया, इसके अंदर कोई रीजन है ना, कर्व है आपका, तो उसका ये कोई रीजन है, राइट? रीजन है तो ये कोई भी सरफेस है तो दिस इज बाउंडेड बाय ए कर्व। आप स्टोक्स थ्योरम में करते थे कि नहीं? ओपन सरफेस लेते थे, फिर दिस इज बाउंडेड बाय ए कर्व, ऐसे ही तो करते थे ना। तो ऐसे ये ओपन सरफेस है कोई भी बाउंडेड बाय ए कर्व के, तो ये कोई भी रीजन है, इसे रीजन बोल सकते हैं या डोमेन बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं डोमेन बड़ी चीज को बोलते हैं। तो ये मेरी डोमेन है, तो किसी डोमेन में एक ये रीजन है। ओके, किसी एरिया में एक छोटा सा ये रीजन है। अब ये रीजन जो है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं कि एक तो क्या है कि इसको चारों तरफ से आप इसे सिकोड़ते जाओ ऐसे, तो अगर इसको चारों तरफ से सिकोड़ते जाओगे तो क्या होगा? एक पॉइंट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो अगर ये जो पॉइंट बनता है तो इसको एक प्रॉपर्टी है सिंपली कनेक्टेड रीजन की, मींस तीन, ये जो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी या चार चीजें बताई थी, इक्विवेलेंट चीजें, ये तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए या चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए, चारों जो भी मैं बता रही हूँ। दूसरा है कि अगर आपने कोई भी आपको रीजन दिया हुआ है, तो कागज का एक छोटा सा, मान लो मैंने टुकड़ा ले लिया, कोई भी रीजन ले लिया, अब मैंने क्या किया, इस कागज के टुकड़े को एक पॉइंट से कोई पॉइंट ले लिया और दूसरे बाउंड्री पे दूसरा पॉइंट ले लिया, और मैंने यहां से कैंची से काटा उसको। तो कैंची से अगर आप काटोगे उसको तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो वो दोनों दो अनकनेक्टेड पीसेस में डिवाइड हो जाना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास कोई भी रीजन है, कोई भी छोटा सा रीजन है, उसके अंदर अगर फिर आप क्लोज्ड, मान लो ऐसे कोई वो बना देते हैं पाथ के, तो उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस रीजन के अंदर बिलोंग करने चाहिए। जैसे कि ये छोटा पाथ मैंने बना दिया तो ये उसके अंदर है ना, उसके सारे पॉइंट्स। अच्छा, मल्टीपली कनेक्टेड कौन सा होगा? सिंपली कनेक्टेड कौन सा रीजन नहीं होगा? कौन सा रीजन नहीं होगा? सपोज मेरे पास ये है, कोई भी ये सर्कल दिख रहा है, ये डब्बे का ये ढक्कन है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें बीच में छेद कर दिया, इसके बीच में मैंने छेद कर दिया। जैसे आपने डिस्क नहीं देखी है, डिस्क तो सबने यूज की होगी, कंप्यूटर वाली पहले जो आती थी जिसमें बीच में छेद होता था, देखी है ना सबने। उस डिस्क को ले लो, तो उस डिस्क में क्या होगा, उसको अगर तुम श्रिंक करो तो क्या वो एक पॉइंट पे श्रिंक होगी? No. नहीं Circle होगी। ही बन जाएगा।
सर्कल बनेगा, मीन्स एक होल बनेगा, है ना, तो वो सर्कल बन जाएगा. सो अगर तुम इसको दूसरे वे में एक्सप्रेस करो तो ये क्या होगा, ए सिंपली कनेक्टेड रीजन हैज नो होल्स इन इट, ये भी कह सकते हो आप. ओके, सो ए सिंपली कनेक्टेड रीजन हैज नो होल्स इन इट, ये भी आपका करेक्ट है. सो सिंपली कनेक्टेड रीजन अगर तुम्हारा ये है तब तो सिंपली कनेक्टेड है, मगर अगर सपोज यहाँ पर ये इस तरह से है कोई, ओके, तो ये क्या है, ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कहलाता है. दिस इज कॉल्ड मल्टीपली कनेक्टेड. ओके, ठीक है, बिकॉज एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है इसमें. ओके, सो देयरफॉर दिस इज मल्टीपली कनेक्टेड रीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन सिंपली कनेक्टेड रीजन किसे बोलते हैं. ओके, सो ए रीजन फर्स्ट थिंग है ए रीजन इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन टाइम बता देना भाई, दूसरा पीरियड है इसके जस्ट बाद मेरा, ठीक है ना. ए रीजन इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन is called simply connected if all closed paths within the region can be shrunk to a point. Shrunk to a point. Okay, or expressed yet another way, ऐसे भी बोल सकते हो इसको, ए सिंपली कनेक्टेड रीजन a simply connected region has no holes in it, has no holes in it. Okay, and second क्या है, second, a simply connected region has the property, so it has the property that every scissor cut scissor माने कैंची, scissor cut starting at an arbitrary point Z1, okay, on the boundary and finishing at another point and finishing at another point Z2 on the boundary separates
the region into two unconnected into two unconnected pieces. Okay, and third thing is a region in the complex plane is called simply connected if all closed path within the region contain only points that belong to the region, that belong to the region. Okay, so जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है they are multiply connected region. Okay, now let us prove this theorem. Proof of the theorem. Okay, so for the proof of this theorem we will make direct use of Stokes theorem. If you remember Stokes theorem, then we can make use of this. So Stokes theorem क्या थी हमारी? That line integral, हम क्या करते थे? Line integral around a closed curve C is equal to the surface integral of the curl of A, okay, dot ds. यही थे ना हमारी. So let us make use of this Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem. Okay. Okay. May be proved by direct application of Stokes theorem. Okay, with fz equal to u x by plus iv x by and z, you know, h or dz is dxi plus dx plus I dy. Okay, so now you remember Stokes theorem. So Stokes theorem क्या थी हमारी? That the line integral around a closed curve C, okay, this is equal to the surface integral of curl of A dot ds. यही थी ना हमारी. Okay, this line integral around a closed curve C, okay, is equal to the surface integral of the curl of A, okay, dot ds. Okay, now let us make use of this. So delta cross A क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? Delta cross A. Okay,
Now delta cross A, you know how to write down cross product. So I j k, and delta you know is del over del x, del over del y, del over del z. अब A क्या हो जाएगा हमारा, ax, ay एंड यहाँ पर 0. ओके okay, if you are considering some region in some domain, okay, and this is the closed curve in this region, okay, then we can write down this thing. So delta cross A यहाँ पर क्या हो जाएगा, this is equal to I, okay, so I का यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 ही आएगा, right, so 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस J, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस K, K के कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, K का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डेल A बाई ओवर डेल X प्लस ओ सॉरी माइनस डेल AX ओवर डेल Y. ओके, ये आ गया हमारा. Okay, IJK are unit vectors, you know already. Let me put head also. Okay, head also. Now this equation, left hand side of this equation क्या हो जाएगी हमारी, equation number, let us say इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको मैं 1 बोल देती हूँ. यहाँ पर जो है इसका बार बार क्योंकि यूज़ होता है, इसको एक्चुअली में कुछ यूनिक नाम देना चाहिए, बट अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2. ओके, so now the left hand side of your equation number 2 becomes, the left hand side of equation 2 becomes, क्या आ गई है आपकी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, कर्ल, तो कर्ल की वैल्यू तो हमने लिख दी, कर्ल की वैल्यू आ गई हमारी k हैट डेल्टा ए वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स ओवर डेल्टा वाई, ये लिख दी. अब यहाँ पर ये हमारा ये क्या होगा, ds, वेक्टर ds, वेक्टर ds इज n हैट ds, राइट. सो n हैट है हमारा यहाँ पर k, सो यहाँ पर भी हमारा k आ जाएगा, k हैट, एंड यहाँ पर आ जाएगा ds की जगह dx dy, सो ये आ गया. नाउ दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज axi plus ayj plus azk etc plus dxi plus dyj plus dzk. सो यहाँ पर अगर xy में लिया है देन दिस इज इक्वल टू axi प्लस ए बाई जे, और क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ dxi प्लस dy j, ये आ गया. सो देयरफॉर फ्रॉम हियर यू गेट दिस थिंग इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया हमारा, दिस थिंग इक्वल टू, ओके, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, सो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, सो दिस डॉट प्रोडक्ट इज, मैं इसको पहले लिखे दे रही हूँ इस साइड, इसको राइट हैंड साइड को अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखे दे रही हूँ. सो लेट मी राइट डाउन ax dx प्लस a बाई dy, ओके, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं राइट, जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है वो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड पर लिख रही हूँ. सो दिस इज डेल ए बाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई, एंड डॉट प्रोडक्ट है, सो यहाँ पर dx dy आ गया. अब हम क्या करेंगे कि इसको हम फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की तरह हम यूज करते हैं. लेट मी राइट डाउन इक्वेशन नंबर ए. ओके, सो नाउ ऑन, मैम टाइम हो गया. अच्छा बस ये खत्म ही हो रहा है वैसे तो, पर
एक्सपेंडिंग, ये वाला इसका प्रूफ अभी खत्म हो जाएगा बस 2 मिनट में, ऑफ इक्वेशन 1. सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 वाज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड थी हमारी. ओके, सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? सी एफ जेड को हमने लिख दिया u प्लस आई वी, वेयर यू एंड वी आर ऑफ कोर्स फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई. एंड यहां पर हमने लिख दिया डी एक्स, डी जेड की जगह आ गया डी एक्स प्लस आई डी वाई. ओके, सो ये तुम्हारा एफ जेड डी जेड आ गया. ओके, एफ जेड डी जेड. एंड नाउ दिस थिंग इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा? दिस, अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया? u dx माइनस v dy. ये रियल पार्ट आ जाएगा. अगर इनको मल्टीप्लाई करो, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई स्क्वायर इज -1 हो जाएगा. सो देयरफॉर यहाँ पर ये आ जाएगा u dx माइनस v dy. और ये पार्ट कौन सा आ जाएगा? प्लस आई, एक पार्ट ये आ जाएगा v dx, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, प्लस u dy. तो ये दो आ गए आपके. अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देख सकते हो u dx माइनस v dy. तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोल दूं, अगर इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोल दूं, इसको सेकेंड पार्ट बोल दूं, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकेंड पार्ट. एंड इफ आई मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन नंबर ए, तो यहाँ पर क्या है? u dx, तो ax की जगह क्या आ जाएगा? u, एंड a बाई की जगह क्या आ जाएगा? माइनस v. एंड देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट? कितने बज रहे हैं? हाँ, बंद करना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं, छोटा सा ही रह गया है, मगर वो बच्चे कई बार वेट कर रहे होते हैं ना. ओके, बट लेट मी कंप्लीट. बहुत ही छोटा सा रह गया है. ओके, now first part of this equation, first part of above equation. तो ये क्या आ गया फर्स्ट पार्ट से कि you can see from here by using a dx minus v dy, ये आ गया. एंड इसको इक्वेशन नंबर ए का यूज करो. तो इक्वेशन नंबर ए का यूज करेंगे तो u इक्वल टू ए एक्स एंड v इक्वल टू क्या था? माइनस v इक्वल टू a बाई, ऐसे ही है ना, ये वाली चीज है. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट. तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर ए, दिस थिंग इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल बाई and dx dy. Now use Cauchy-Riemann conditions here. Okay, if you use Cauchy-Riemann conditions here, तो क्या आ जाएगा? This thing equal to, by using Cauchy-Riemann conditions. तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? by using Cauchy-Riemann conditions, this is equal to minus del v over del x plus del u over del y. क्या हो जाएगा आपका? 0. यूज करो इसको. डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल बाई. सो यहाँ पर डेल वी ओवर डेल बाई, ओके, और यू में लिख लो चाहे वी में लिख लो, इट इज अप टू यू. तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा. समझ में आ गया? इसी तरह से दूसरे पार्ट को करना है. अब उसको कल कर देंगे और कंप्लीट जो थोड़ा सा रह गया है, या आप अपने आप भी कर सकते हो उसको कंप्लीट. ओके, सो नाउ लेट मी स्टॉप इट. ओके, so bye bye. Now I join my next class. अटेंडेंस आप उस पर ही लिख दिया करो व्हाट्सएप पे.